آپ سب کو سلام، میں خدا کا شکر کرتی ہوں۔ آج جو ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ وہی ہے فیئر پہ، اور میں راست بازی پہ پریچ کر رہی ہوں کہ کس طرح جب آپ مسیح یسوع میں جو آپ کی آئیڈینٹی ہے، جب آپ اس میں چلتے ہیں تو آپ کس طرح چینج کو دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے آپ کے انسائڈ، اور آپ اندر سے جو ہیں وہ آپ کا فلیش آپ کو کبھی بھی ماننے نہیں دے گا۔ اور جب آپ اپنے باہر آؤٹ ورڈ پرسن کے لحاظ سے اپنے انورڈ پرسن کو دیکھنا چاہیں گے، جب آپ اپنے ظاہری شخصیت سے آپ اپنی اندرونی شخصیت کو جو آپ مسیح یسوع میں ہیں، جب بھی آپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آپ ہمیشہ فیل ہوں گے، کیونکہ جو آپ کی ظاہری شخصیت ہے وہ کبھی بھی آپ کے جو آپ مسیح یسوع میں ہو اس سے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ ہم نے غلطیوں کے خط اس کے 5 باب میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے خلاف ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ امیجن کریں ذرا سا، آج میں یہ بات پہ سوچ رہی تھی، آپ تب تک اپنے ماضی کو نہیں چھوڑ سکتے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد بھی، جب تک آپ کا بدن آگے چلا گیا لیکن آپ کا منہ پیچھے لگا۔ امیجن کریں کہ آپ کے فرنٹ میں کنگڈم ہے لیکن آپ کے بیہائنڈ میں، آپ کے پیچھے میں آپ کا پاسٹ ہے۔ آپ کہنے کو آگے چل رہے ہیں لیکن آپ دیکھ پیچھے رہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ فیئر سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کا فیوچر کیا انسرٹینٹی کو ہولڈ کرتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے، تو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں آپ کو تب سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے جب آپ کا پیچھے منہ مڑاؤ لیکن آپ کے جو باڈی کی ڈائریکشن ہے وہ کنگڈم، لیکن آپ کا جو منہ ہے وہ پیچھے مڑا۔ اب جب آپ کی آنکھیں ہی پیچھے لگی ہوئی ہیں تو جب آپ سیدھا چلیں گے بھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کس روڈ پر جانا ہے اور کون سا اسٹیپ آپ نے نیکسٹ اٹھانا ہے، کیونکہ آپ دیکھ ہی پیچھے رہے ہو۔ اور جب بھی کوئی پیچھے دیکھ کر چلتا ہے تو وہ آگے ہٹ ہی ہوگا، وہ ہمیشہ آگے گرے گا۔ جب آپ، میں نے کیا کہا، یہ اسی طرح آپ کر لو کہ آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہو تو کیا ہوگا، ایون جب ہم کلاس بھی لے رہے تھے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، اگر ہم بار بار پیچھے دیکھتے تھے تو ہم جو بورڈ پہ ہو رہا ہوتا تھا ہم اس کو مس آؤٹ کر دیا۔ آپ کو جو خدا انسٹرکشنز دے رہا ہے آپ ان کو بار بار مس کریں گے اگر آپ کا دھیان پیچھے کی طرف لگا، اور اگر آپ کو آگے کی گریٹر چیز نہیں نظر آ رہی نا تو آپ مسلسل جو آپ کے پیچھے ہوا تھا اس کو چھوڑنے پر پچھتاتے رہیں گے۔ میں نے کیا بولا؟ جو آپ کے پیچھے ہوا تھا آپ مسلسل اس سے پچھتاتے رہیں گے، آپ ریگریٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو آگے گریٹر چیز نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ آپ کو ایک ایکسپینسو گاڑی ملنی ہے لیکن ابھی آپ کے پاس مہران ہے، تو کیا آپ اپنی مہران کے بارے میں سوچیں گے یا جو نیکسٹ گاڑی آپ کو ملنی ہے اس کے بارے میں سوچیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہر شخص جو نیکسٹ ملنی ہے اس کے خیالات میں رہے گا بجائے کہ اپنی مہران کی۔ جب تک آپ کو آگے کی گریٹر چیز جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، آپ پیچھے سے ہی آپ پیچھے دیکھتے رہیں گے، اور جب تک آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ آگے پروگریس نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ٹریڈ مل پہ چڑھ کے بھاگ رہے ہیں، آپ رننگ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ رننگ کر رہے ہیں لیکن آپ ٹریڈ مل پہ، اور جب آپ ٹریڈ مل پہ ہیں تو آپ کتنی بھی رننگ کر لیں وہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ نے اتنا ڈسٹینس کور کر لیا، لیکن وہ آپ نے صرف اتنی رن کی ہوتی ہے، آپ اس پوائنٹ تک پہنچے نہیں ہوتے۔ وہ فیک رننگ ہے، اس میں آپ اس جگہ پہنچ نہیں رہے، آپ کی باڈی مسلسل ٹانگیں ہلا رہی ہے لیکن آپ ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت مسیحیت میں بھی ٹریڈ مل پہ چڑھ ایکٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن آپ آگے نہیں بڑھ رہے، آپ صرف اپنی ٹانگوں کو ہلا رہے ہیں، آپ اسی پوزیشن میں کھڑے ہو کے ہاتھ اور پاؤں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے، آپ جب ٹریڈ مل پہ ہوتے ہیں اور آپ نے اسپیڈ بھی لگائی ہوئی ہے اور آپ تیز سے رن کر رہے ہیں، اگر اس ٹریڈ مل پہ شیطان آپ پر اٹیک کر رہا ہے نا، تو جب تک آپ ٹریڈ مل سے اتر کے ریل میں بھاگنا نہیں شروع کریں گے آپ شیطان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہیں گے اور اسے مار بھی کھاتے رہیں گے، کیونکہ آپ اس چیز پہ چڑھے ہوئے نا۔ آپ کو لگے گا میں تو بھاگ رہا ہوں، میں شیطان کیوں نہیں بھاگ رہا، کیونکہ آپ پوائنٹ اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے آپ لوگ چاہ کر بھی اپنے جو ایٹیٹیوڈز ہیں، جو اپنی چیزیں ہیں ان کو فکس نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ اسی پہ چڑھے ہوئے جس پہ آپ چڑھے رہنا چاہتے ہیں، ٹریڈ مل پہ۔ خدا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، خدا کو ایک پرسنالٹی، ایون خدا کو گناہگار بھی برے نہیں لگتے۔ خدا خود کہتا ہے میں گناہگاروں کے واسطے آیا ہوں۔ خدا کو گناہگار برا نہیں لگتے۔ پتہ ہے خدا کو کون برے لگتے ہیں؟ نیم گرم لوگ، ہپوکریٹ، نیم گرم لوگ، دوغلے لوگ، دو دل لوگ، جو ایک ٹائم میں خدا کی سننا کی ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ ایکٹ کر نہیں رہے۔ مس تمثیل میں کلیئرلی لکھا ہے کہ تم کون سا بیٹا اچھا ہوا پہلے انکار کر کے چلا جاتا ہے یا وہ جو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور کرتا نہیں ہے۔ اور آپ میں سے جو کوئی لیڈرشپ کی اس میں نہیں آتا، انسٹرکشنز میں نہیں چلتا، اس کا الٹیمیٹ لاس ہے۔ الٹیمیٹ لاس میرا نہیں ہے، کیونکہ میں جس مینٹورشپ کے انڈر ہوں میں اس کی ہر ایک بات سنتی ہوں، میں جس مینٹورشپ کے اندر ہوں میں اس کی سنتی ہوں، اور اگر میں نہ سنوں تو میں نقصان اٹھاتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کرتی کیونکہ میں نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ آپ جب لیڈرشپ کو آنر نہیں کر رہے تو آپ نقصان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ میں بائی پرسنالٹی، بائی نیچر اور اب مسیح یسوع میں بہت ایک دلیر پرسنالٹی ہوں،
मेरी ये पर्सनैलिटी ट्रेट है कि मैं एक दलेर शख्स, मैं बोल्ड इंसान। सिमिलरली मुझे अब उन लोगों के साथ काम करना पसंद आता है जो बोल्ड हैं, जो खौफ में चल रहे हैं, मुझे उनके साथ काम करना पसंद नहीं आता। आपको अपनी मुसलसल आइडेंटिटी में चलना है। जब कोई शख्स आर्मी ज्वाइन करता है तो वो अपना तमाम रहन सहन ठीक कर ले। जब कोई शख्स आर्मी ज्वाइन करता है तो वो 6 महीने के लिए या जो भी उनका ट्रेनिंग टाइम पीरियड है वो अपने घर वालों को छोड़ देता है। वो अपनी उन तमाम एक्टिविटीज को, उनसे फोन भी ले लिया जाता है, वो छोड़ देते हैं। वो यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, वो अपना लिविंग स्टाइल चेंज कर लेते हैं और जैसे उनको रखा जाता है वो वैसे रहते हैं। लेकिन जब आपने किंगडम को ज्वाइन किया, खुदा के किंगडम, तो आपने अपने लिए अपने अंदर क्या आउटवर्ड चेंज प्रोड्यूस किया। आपकी जिंदगी में फियर का जो दूसरा नाम है ना, वो कॉम्प्रोमाइज। फियर का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्रोमाइज। जब आप फियर करेंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज की स्टेट में करेंगे। आप उस चीज को यस कह देंगे जिसको खुदा आपको कह रहे हैं नो कह। जब आप कॉम्प्रोमाइज की स्टेट में हैं, आप उस चीज को वेलकम करेंगे जिसको खुदा ने कहा था शट कर। जब आप फियर में हैं, आप वो तमाम काम करेंगे जो सोसाइटी आपको एक्सेप्टेंस के लिए करने को कह रही है, जबकि खुदा आपको कह रहा है कि दुनिया के हम शक्ल ना बन। आप में से बहुत से लोग इसलिए अपनी लाइफ चेंज नहीं करे क्योंकि आप कहते हैं कि हमने दुनिया में भी रहना है, और जिनके मेंटोर्स दुनिया भी है और वो खुदा को बनाना चाहते हैं, ऐसा शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम। ऐसा शख्स क्या है? दो दिला है और अपनी सब बातों में क्या है? बेकयाम। अपनी आइडेंटिटी को पहचाना इतना जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी काम कोई भी नहीं। अपनी आइडेंटिटी को पहचाना कि खुदा ने आपके लिए क्या बेस्ट रखा है, खुदा ने आपके लिए क्या पर्पस रखा है, खुदा ने आपके लिए क्या असाइनमेंट रखा है। शैतान मुसलसल आपको आके कहेगा कि यू आर नॉट इनफ। शैतान आपको कहेगा, लेकिन आपने अपना काउंसलर शैतान को बनाना है, अपना कंसल्टेंट शैतान को बनाना है, या आपने खुदा के कलाम को बनाना है। या आपने फियर में चलना है या फेथ में चलना है। जो लोग फेथ में चलते हैं, कलाम उनके बारे में कहता है, पौलुस रसूल कहता है, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। यानी कि जो भी कोई फेथ में चल रहा है वो आंखों देखे में चल ही नहीं सकता। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो कोई ईमान में चल रहा है वो आंखों देखे पर चल नहीं सकता। मेरे साथ हवाला खोलें जल्दी से। ये वाला हवाला आता है किसी को, दूसरा करंथियों का 5 बाब उसके साथ आए, कहता है क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। बड़ी क्लियर सी वर्स है कि एक वक्त में आप एक ही चीज में चल सकते हैं। मैं रिपीट करूंगी, आप एक ही वक्त में एक चीज में चल सकते हैं। या तो आप ईमान पर चल सकते हैं या तो आप आंखों देखे पर। वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा हम कुछ सिचुएशंस में ईमान पर चलते हैं और कुछ सिचुएशंस में आंखों देखे पर। क्योंकि जो लोग कुछ जगह ईमान लगाना पसंद कर रहे हैं और कुछ जगह सेल्फ डिसीजन लेना पसंद कर रहे हैं, ऐसा शख्स दो दिला है। और आपको पता है इसको क्या कहते हैं? कि कभी खुदा के पास टाइम गुजार लिया और कभी दुनिया में टाइम गुजार लिया। इस चीज को क्या कहते हैं? इसको प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टिट्यूशन। ये प्रोस्टिट्यूशन है, इसको गॉडली प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं कि कभी आप खुदा के पास चलेंगे और कभी आप दुनियावी बन। और खुदा प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ। तभी वो कहता है कि गॉड इज द रिवॉर्डर ऑफ डिलिजेंट सीकर्स। आपको खुदा रिप्लाई नहीं कर रहा, मे बी कर भी रहा, आप नहीं सुन रहे क्योंकि आप डिलिजेंट सीकर्स नहीं है। आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि आप डिलिजेंट सीकर नहीं है। आप पूरे दिल से उसके तलबगार नहीं। आप अभी तक अपने आप को टू वाइज समझते हैं, और जो ऑलरेडी वाइज हैं खुदा उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करता। जब से मैं मेंटोर बनी और मेरा बहुत ज्यादा पब्लिक से इंटरेक्शन हुआ, मैं जो कुछ आप लोगों के लिए मैं फील करती हूँ, मैं उसको खुदा के रिलेशनशिप में डाल के देखती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरे सामने कोई आता है और वो मेरी सुनने तो आता है, लेकिन जब मैं उसको मशवरा दे दूं उस पे एक्ट नहीं करता, तो मैं उसको जोर जबरदस्ती तो मनवा नहीं सकती। लेकिन अगर उसका नुकसान हो जाए तो वो मुझे ब्लेम नहीं कर सकता कि उसका नुकसान इसलिए हुआ। उसका नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी उसने उसको सुना नहीं। मैं हमेशा खुदा को अपना मेंटर समझ के उस रिलेशनशिप के जाविये में लाती हूँ, सांचे में ढालती हूँ कि खुदा के साथ जब हमारा रिलेशनशिप है तो खुदा हमें किस तरह ट्रीट कर। तो यहाँ पर लिखा है आप सबों के लिए मैसेज है आज, वो हमारे फेथ को कंटेमिनेट ना कर, क्योंकि रिबेलियस लोग बाकी लोगों को भी कंटेमिनेट अपने वो जो एक शख्स है वो बाकी सबकी आदतें भी खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि वो रिबेल कर, और जो रिबेलियस एटीट्यूड है उसके साथ आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में वो कहता है वो हलीमों को फरोतनी बख्शा है, सॉरी सरफराज करते हैं, वो फरोतन लोगों को सरफराज करते हैं, हलीमों। अगर आप हम्बल नहीं है, और हम्बल होने का मतलब क्या है? जैसा खुदा कह रहे हैं आप वैसे इंस्ट्रक्शन। फिर आप पे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि आप आंखों देखे पर चल रहे हैं। आपका रिएक्शन आपको क्यों इफेक्ट कर रहा है? कि आप आंखों देखे पर चल। आपकी डिसीजन में आप क्यों
डगमगा रहे हैं क्योंकि आप आंखों देखे पर चल रही हैं। पॉल इसके अगेंस्ट रीच करता है। पॉल एक जगह ये भी कहता है, अगर एक जगह तुम बार बार अपने कामों में गिरते हो, वो एक जगह ग्रेस को हस्बैंड शो करता है, एक जगह वो लॉ को हस्बैंड शो करता है, और एक वक्त में आप दो शोहरों के साथ नहीं रह सकते। मैं दोबारा रिपीट करूंगी अपनी बात, एक वक्त में आप दो मालिकों की खिदमत नहीं कर, या तो आप एक से डरेंगे और दूसरे के खिलाफ जाएंगे, या तो आप दूसरे से डरेंगे और पहले के खिलाफ जाएंगे। अब जिससे आप डरेंगे, रोमियो का 6 बाब उसकी 16 आयत कहती है कि जिसके हुक्म मानते हो उसी के ताबे हो। अगर आप आंखों देखे पे चल रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आप अपने बदन के ताबे हैं, और जो कोई बदन का ताबे है वो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता। अगर तुम आदमियों को खुश करते हो, तुम खुदा को खुश नहीं कर सकते। इन एंड टाइम्स में खुदा अपनी सुपर नेचुरल जेनरेशन को, जो परफेक्ट हो, परफेक्ट इन अ सेंस, जो वाकई सिर्फ ईमान पर चलते होंगे ना कि आंखों देखे पे, उसको रेस कर। तो फियर क्या कर रहा है? फियर ऑफ सोसाइटी, फियर ऑफ पार्टनर, फियर ऑफ फ्रेंड। आपके क्या क्या खौफ हो सकते हैं? फ्यूचर का फियर, कोई भी लोग हो सकते हैं, आपका कोई भी फियर हो सकता है, आपको कोई भी खौफ हो सकता है। अगर आप कलाम सुनते सुनते सीरियस नहीं है तो आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे, और आप कभी भी फियर को ओवरकम नहीं कर। फियर आपको पैरालाइज कर। इसाया 54 की 13 आयत। तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। तू रास्तबाजी से पाक हो जाएगा, तू जुल्म से दूर रहेगी क्योंकि तू बेखौफ होगी, और दहशत से दूर रहेगी क्योंकि वो तेरे करीब ना आएगी। मुमकिन है कि वो इकट्ठा हों पर मेरे हुक्म से नहीं, जो तेरे खिलाफ जमा होंगे वो तेरे ही सबब से गिरेंगे। देख मैंने ललहार को पैदा किया जो कोयलों को आग धामता और अपने काम के लिए हथियार निकालता है, और गारतगर को मैं ही ने पैदा किया कि लूट मार करे। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बांधा जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। यहाँ पर लिखा है 13 आयत में, और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे। लेकिन हमारे फर्जंद किससे तालीम पाना चाह रहे हैं? हमारे फर्जंदों के टीचर्स ही बहुत हैं। वो एक टाइम में अपनी मामा की भी सुन रहे हैं, एक टाइम में अपने पापा की भी सुन रहे हैं, एक टाइम में अपने चाचू की भी सुन रहे हैं, अपने फुप्पो की भी सुन रहे हैं, अपने चर्च वालों की भी सुन रहे हैं, एक टाइम में वो मेरी भी सुनना चाहते हैं, एक टाइम में वो अपने दिल की भी सुनना चाहते हैं। तो जिनके इतने सारे टीचर्स हो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है काम को सीखना। यहाँ पर लिखा है, और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे। अब खुदावंद से जब तालीम बंदा पाना शुरू करता है, वो यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, और जैसे वो यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो नया मखलूक बन जाता है, वो चेंज हो जाता है। अब जब वो चेंज हो गया तो आगे क्या कहता है? और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल हो। ये आपके साथ प्रॉमिस है कि खुदावंद आपको सेव्ड भी रखेगा और प्रोटेक्टेड भी रखेगा। लेकिन किन के लिए प्रॉमिस है? फर्जंदों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, वो सेव्ड भी रहेंगे और वो प्रोटेक्ट। अगर उनका कोई नुकसान होता भी है तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए नुकसान हो। एक बच्चा अगर रैश ड्राइविंग कर रहा है, तेज गाड़ी चला रहा है, तो मना किया गया, उसको इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि इस रोड की स्पीड इतनी है, ऊपर कैमरास भी लगे हैं, इवन हुकूमत ने भी लिखा है कि इस रोड पे इतनी स्पीड को मेंटेन करना है, और वो इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक कर रहा है और वो नुकसान उठा रहा है, तो उसके मरने पे या उसके एक्सीडेंट पे कोई हुकूमत को ब्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उसने ओवर स्पीडिंग कर दी, उसने रूल्स को ब्रेक किया। अगर आप इस वक्त हर्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं, पेन में आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द परसिक्यूशन, आपको बताना चाहती हूँ परसिक्यूशन भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सारी जिंदगी परसिक्यूशन में रहेंगे। आप परसिक्यूशन में जा सकते हैं, लेकिन खुदा आपको सरफराजी के साथ उसमें से बाहर निकालेगा, अपने जलाल के साथ निकालेगा। तो जब आपने प्रिंसिपल और रूल ही तोड़ दिया तो आपके घर वाले केस करते नहीं, लेकिन जब कैमरा रिपोर्ट आएगी तो उसमें आएगा कि आपके बच्चे ने ओवर स्पीडिंग की थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया, हुकूमत इसकी कसूरवार नहीं होगी। कोई भी आप एक्सीडेंट होने के बाद ये नहीं कह सकते रोड बुरा था। अगर रोड अच्छा है आप ये नहीं कहेंगे कि रोड बुरा था, और इस रोड की वजह से एक्सीडेंट, क्योंकि गाड़ी खुद ब खुद तेज नहीं हुई। आपके पास गाड़ी को तेज करने का भी कंट्रोल है और गाड़ी को आहिस्ता करने, आपके पास रिटन इंस्ट्रक्शंस भी हैं, आपके पास लीगल लाइसेंस भी है, आपने शायद टेस्ट भी पास किया हो, लेकिन आप रोड पे क्या जो आपने टेस्ट देते वक्त या टेस्ट से पहले तैयारी के वक्त जो आपने इंस्ट्रक्शन सीखी थी, आप उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ रोड पे निकले। अगर आपने जो ड्यूरिंग प्रेपरेशन जो इंस्ट्रक्शन सीखी थी आप उन इंस्ट्रक्शंस के साथ रोड पे नहीं उतर रहे, तो आप नुकसान को, प्रॉब्लम को वेलकम कर। लेकिन जो कोई खुदा के फर्जंद है, खुदा के बेटे बेटियां हैं, वो अगर अपने खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो उनके साथ कामिल सलामती रहेगी। और फिर क्या होगा? तो रास्तबाजी से पायदार हो जाए, यानी कि आपके अंदर क्या आ जाएगी? रास्तबाजी। किसकी? खुदावंद यीशु मसीह की। किसकी रास्तबाजी आ जाएगी? खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी आपके अंदर आ जाएगी। अब खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी पे कल मैंने बहुत डिटेल कलाम ऑलरेडी सिखा दिया, आप सबको पता है रास्तबाजी के। थम्स अप कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी जो हमें मिली आप सबको मैंने कल समझाई थी। फिर कहता है तू रास्तबाजी से पायदार हो जाएगा। अब आप सब खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी से पायदार हो चुके हैं, क्योंकि आप सब ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। अगर कोई हमें नया सुन रहा है, उन्होंने नहीं कबूल किया होगा, बाकी सब ने खुदावंद यीशु मसीह कबूल किया। आगे चलते, कहता है तू जुल्म से दूर रहे
रहेगी। अब कौन? रास्तबाजी के बता रहा है कि रास्तबाजी के क्या क्या क्वालिटीज हैं, रास्तबाजी के क्या क्या ट्रेट्स हैं। रास्तबाजी को जो रिसीव कर रहे हैं, जो रास्तबाजी के साथ होगा उनके साथ भी वही होगा जो रास्तबाजी को रिसीव कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात को। यहाँ पर वो बता रहा है कि रास्तबाजी के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। खुदा यीशु मसीह की रास्तबाजी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रास्तबाजी के खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाया जा सकता। रास्तबाजी के खिलाफ जो खड़ा होगा वो उसके सामने गिर भी जाएगा। अभी सारी बातें वो बता रहे हैं। और जो शख्स उस रास्तबाजी को कबूल कर लेता है उसके साथ ये सारे काम होने लग जाते हैं। आमीन। उसको ना दिन को उड़ने वाला तीर और ना रात की हैबत से डर लगता है, क्योंकि जो भी वर्स है ज़बूर 91 की, क्योंकि उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी काम करने लगा। लेकिन अगर वो शख्स उस रास्तबाजी को नहीं पहचानता, उसके लिए मसला है। अगर वो शख्स उस रास्तबाजी को नहीं पहचान रहा, क्योंकि हमने ये बात पतरस के पहले खत में और उसके पहले बाप में, हमने पहला खत है दूसरा खत है, लेकिन उसके पहले बाप में हमने ये बात सीखी है कि जितनी बातें हमें जिंदगी गुजारने और दीनदारी के लिए जरूरी है वो सब कुछ हमें उसके नॉलेज में मिल चुके हैं। यानी कि दूसरा बाप है, दूसरा खत है, यानी कि प्रोटेक्शन, सप्लाई, तहफ़्फ़ुज़ भी मिल चुका है, प्यारों से बचाव भी मिल चुका है, रात की हैबत से भी हम बाहर निकल चुके हैं, दिन को उड़ने वाले तीर से भी कोई वबा भी आपके खैमे के नजदीक न आएगी। फरिश्तों को आपकी बाबत हुक्म दे दिया गया है, लॉन्ग लाइफ का आपसे प्रॉमिस कर दिया गया है, सिन आपके फॉरगिवन हो चुके हैं, इनिक्विटीज वो आपकी याद नहीं करेगा। ज़बूर 103 आपको याद है, जिस दिन मैंने ज़बूर 103 के बेनिफिट्स पढ़ाए थे आप सबको, और मैंने बताया था कि ज़बूर 103 में लिखा है कि तू इन भलाइयों को, खुदा के इन बेनिफिट्स को भूलना मत। और फिलमोन के खत में उसके पहले बाप की 6 आयत है, वो कहता है एक्नॉलेज ऑल द गुड थिंग्स दैट आर इन। और क्या है वो? क्राइस्ट आपके अंदर गुड थिंग। आपके अंदर अपनी तो कोई गुड थिंग नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो मसीह है वो आपके अंदर गुड थिंग है। आप रिजेक्टेड हो सकते हैं सोसाइटी से, लेकिन क्राइस्ट आपके अंदर ग्रेटर है। आप रिजेक्टेड हो सकते हैं फैमिली से, लेकिन ग्रेटर क्राइस्ट आपके अंदर है। आप रिजेक्टेड हो सकते हैं शायद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब एरिया से, किसी पर्सन से, बट द ग्रेटर वन लिव्स इनसाइड। और ये चीज आपको अपने आप को याद भी करना। जब बाकी सब कर रहे हो तो आपने इस इमारत पर खड़े रहना है कि मेरे आसपास 1000 और मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000। और से क्या होगा? आप अपना फोकस फ्रॉम फियर टू फेथ में शिफ्ट कर। और कलाम का प्रिंसिपल है कि हम ईमान से चलते हैं, ना कि आंखों देखे। और जैसे ही आप ईमान पर चलना शुरू करेंगे और आंखों देखो को रिजेक्ट करेंगे, चीजें आपके लिए तब्दील हो जाएंगी। हर एक चीज आपके फेवर में काम करने लग जाए। अब आपको समझ आ रही है कि आपकी तरक्की ना होने के पीछे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है आपकी तरक्की ना होने के पीछे, क्योंकि आप अपनी न्यू आइडेंटिटी में आप अभी भी पुरानी मशे बन के फिर रहे हैं। और कलाम कहता है कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरी जा, क्योंकि इस तरह मशक भी फट जाएगी और नई मैं भी जाया हो जाएगी। हिपोक्रेट्स जो लोग हैं, जो दोगले हैं, जो एक टाइम में कुछ है और दूसरे टाइम में कुछ और है, खुदा उनको सफेदी भरी हुई कब्रें कहता है, जो अंदर से डेड है लेकिन ऊपर से चमकता है। कब्र चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, वो कब्र ही है। ऐसा है कि नहीं है? आप कितना भी खूबसूरत मीनार बना दें, टूम्ब बनवा दें मरने वाले के लिए, वो उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि वो टूम्ब है और उस बंदे की डेथ हो चुकी है। जो शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में लिव कर रहा है, वो एक किस्म का सफेदी फिरी हुई कब्र की मानद बन रहा है। प्रिटेंशियस लोग रास्तबाजी में वॉक नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा है, और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल हो, तो रास्तबाजी से पायदार हो जाएगी, तो जुल्म से दूर रहेगी। रास्तबाजी जो आपके अंदर काम करिए वो किससे दूर रहेगी? जुल्म से। फिर क्या होगा? तो जुल्म से दूर रहेगी क्योंकि तू बेखौफ होगी। आपके अंदर जो रास्तबाजी काम कर रही है वो बेखौफ है। वो किसी सोसाइटी का, किसी रिश्तेदार का, किसी चर्च का, किसी बंदी का प्रेशर नहीं है। वो करती है जो खुदा उसे करने को, क्योंकि उसके अंदर रास्तबाज खुदावंद यीशु मसीह आपके अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते हैं मैं आपसे वो करता और कहता हूँ जो मेरा बाप मुझे करने को कहता है। तो सेम रास्तबाजी आपके अंदर काम कर रही है। वो खुदा की बात मानना चाहता है, वो बेखौफ है। और आगे क्या कहता है? और दहशत से दूर रहेगी। फियर उसको अटैक भी करेगा, वो उस फियर के अगेंस्ट काम कर सकता है। उसके बाद वो कहती है क्योंकि वो तेरे करीब ना आएगी। मुमकिन है कि वो देखें, वो तेरे दहशत तेरे करीब ना आएगी तब जब आप अपने आप को रास्तबाज समझ रहे हैं, जो कि आप ऑलरेडी हैं। ये कोई झूठा समझना नहीं है, आप ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह में रास्तबाज हैं। क्या है आप खुदावंद यीशु मसीह में? रास्तबाज। और दहशत आपके करीब ना आएगी। उसके बाद वो कहते हैं क्योंकि वो तेरे करीब ना आएगी, मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों पर मेरे हुक्म से नहीं। अब ये भी आपके अंदर एक एश्योरेंस होनी चाहिए कि मेरी जिंदगी में कोई भी कुछ बैड हो रहा है तो मैंने कहीं ना कहीं खुदा की इंस्ट्रक्शन को मिस किया है, क्योंकि खुदा तकलीफ और गम से नहीं सिखाता है। खुदा अपने कलाम से, तिमोथियस के खत में लिखा है कि उसका कलाम करेक्शन के लिए काफी है। खुदा आपको पेन देके कभी नहीं समझाता। ये खुदा का समझाने का स्टाइल
नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं तू रास्तबाजी से पायदार हो जाएगी, तू जुल्म से दूर रहेगी क्योंकि वो तू बेखौफ होगी, और दहशत से दूर रहेगी क्योंकि वो तेरे करीब ना आएगी। मुमकिन है कि वो कभी इकट्ठे हों पर मेरे हुक्म से नहीं, जो तेरे खिलाफ जमा होंगे वो तेरे ही सबब से गिर जाएंगे। देख मैंने लोहार को पैदा किया जो कोयलों की आग धुनकाता और अपने काम के लिए हथियार निकालता है, और गारत घर को कि मैंने ही पैदा किया कि लूट मार करे। कोई हथियार, कहता है कुछ हथियार मैंने तैयार किए हैं, लेकिन वो हथियार तुम्हारे खिलाफ तैयार नहीं किए, बल्कि तुम्हारे खिलाफ जो कोई हथियार तैयार करेगा वो कभी कामयाब ना होगा, क्योंकि तुम किस में चल रहे हो? खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाज़ी। तुम न्यू क्रिएशन, तुम्हारे गुनाह मिटा दिए गए, तुम्हारी खताओं को वो कभी हरगिज याद ना। इतना बड़ा आपके लिए मैसेज। खौफ का आप पर कोई जोर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज का आपके जहन में कोई जोर या दबाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है गिर जाएंगे। देख मैं लोहार को पैदा किया जो कोयलों की आग धुनकाता और अपने काम के लिए हथियार निकालता है। गर्द को कोई हथियार जो तेरे खिलाफ सुनाया जाए काम ना करेगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगा। खुदावंद फरमाता है ये मेरे बंदों की मिरास है। आप अपनी इनहेरिटेंस को ढूंढ रहे हैं, आप अपनी इनहेरिटेंस को ढूंढ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर लिव कर, आपके अंदर रिजाइड कर, बजाय कि आप उसको बाहर निकालें आप फियर को अपने अंदर डाल रहे हैं। और अगर आप ये जो भी मैंने पढ़ाया था दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसके 7 आयत में, तो आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, हम ईमान पर चलते हैं ना के खौफ पर, क्योंकि ईमान को ऑपोजिट क्या है? खौफ। एक शख्स ईमान और यकीन रख रहा है कि खुदा उसके साथ भलाई करेगा, दूसरा शख्स इस खौफ में है कि क्या जो मेरे साथ हो रहा है वो खुदाई तो नहीं कर रहा बुरा। ईमान और फियर में, खौफ में आप साथ साथ नहीं चल सकते। आपके दिल में इस वक्त जो चीज कसरत से भरी हुई है, इसका मतलब है आप उसी चीज को सबसे ज्यादा खुराक दे रहे हो, आप उस चीज को फीड कर रहे हो। अगर कोई बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है वो मोटा हो जाता है, तो हम उसको देखते ही कह देते हैं तुम यकीन चॉकलेट्स, जंक फूड और मीठा बहुत खाते हो। लेकिन एक शख्स जो बॉडी में शेप में होता है उसको देखते ही कह देते हैं भाई ये परफेक्ट है, ये अपना बहुत ख्याल रखता है, कहते हैं ना हम लोग। सिमिलरली इस वक्त अगर आपके दिल में फियर ज्यादा है तो आप उसको फीड कर रहे हैं, और देखिए आप कैसे करें। किन कन्वर्सेशंस के थ्रू आप खौफ को अपने अंदर दावत दे रहे हैं, किन पिक्चर्स के थ्रू आप अपने अंदर खौफ को दावत दे रहे हैं, किन ख्यालात के थ्रू आप अपने अंदर खौफ को दावत दे रहे हैं। और खुदा का कलाम कहते हैं मैं तमाम उन खौफ ख्यालात को जो खुदा की जात के बरखिलाफ मेरे जहन में सर उठाए हुए को ढा दूंगा और उनको मसीह का ताबेदार बना दूंगा। उसके बाद वो कहता है जो जुबान अदालत पर तुझ पर चलेगी उसे मुजरिम ठहराएगा। कोई भी इस वक्त जो आप पर जजमेंट पास कर रहा है, कोई भी शख्स जो आपको इस वक्त रिजेक्ट कर रहा है और आपको उसके खौफ है, आपने उस खौफ में नहीं जीना, और वो क्या है? कहता है मुजरिम ठहराएगा। जो कोई आप पे फॉल्स जजमेंट दे रहा है और आपको डरा रहा है, आपको खौफ नहीं करना, क्योंकि आपके अंदर ग्रेटर आसपास। कभी कभी हमें गुर्बत खौफ देती है, हेवी बिल्स हमें खौफ देते हैं, बच्चों की स्कूल फी हमें खौफ देती है, पेरेंट्स की जॉब ना होना हमें खौफ देता है, घर का सिस्टम ना चलना हमें खौफ देता है, लाइफ पार्टनर ना मिलना हमें खौफ देता है, बुरा लाइफ पार्टनर दे देना हमें खौफ, औलाद ना होना हमें खौफ देता है, औलाद हो जाना और फिर उसकी हिफाजत करना हमें खौफ देता है। हर चीज इस जमीन पर आपको कहीं ना कहीं खौफ देगी। अच्छी नौकरी न मिलना आपको खौफ हो सकता है, कहाँ से पूरी पड़ेगी आपको खौफ हो सकता है। लेकिन अगर आप रासबाजी में चल रहे हैं तो वो कहते हैं रासबाजी के खिलाफ जो भी हथियार बनाया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके खिलाफ गुर्बत का हथियार बना हुआ है तो क्या वो कामयाब होगा? अगर आप अपनी न्यू आइडेंटिटी में चल रहे हैं, बताइए मुझे, जब आप अपनी न्यू आइडेंटिटी में चल रहे हैं तो क्या गुर्बत जैसा कोई हथियार आप पर काम कर सका है? फिर नहीं। लेकिन प्रिंसिपल क्या है? तो पहले तुम उसकी बातदारी, उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो, ये चीजें भी तुमको मिल जाए। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्या करना है, आप फिक्रमंद हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? तो आपके लिए नेक्स्ट स्टेप अभी के लिए यही है, मत्ती उसका 6 बाब उसकी 33 आयत उसकी 33 आयत। पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश, ये चीजें भी तुमको मिल जाए। तो अब आपने रास्तबाजी की तलाश कर ली, तलाश करने के बाद उसको जानना भी शुरू करें। आपको खजाना मिल गया, खजाने को आपने सीने के साथ लगा भी लिया, लेकिन कभी खोल कर देखा नहीं कि खजाने में क्या क्या ऐसी चीजें जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो खजाना आपके लिए यूजलेस रहेगा। बात समझ आइए? आपको कोई चीज गिफ्ट में मिल गई लेकिन आपने गिफ्ट कभी खोला ही नहीं। मैंने क्या बोला? आपको कोई चीज इनाम में मिल गई है लेकिन उस इनाम को आपने कभी खोला ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनाम में था क्या? इसी तरह मसीह यीशु की रास्तबाजी आपको इनाम में मिल गई है, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम पर मेडिटेट नहीं कर रहे और उसकी रास्तबाजी को नहीं पहचान रहे और उसके नॉलेज में नहीं बढ़ रहे, तो क्या होगा? आपको वो 1% भी फायदा नहीं दे, क्योंकि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे गुड थिंग्स जो मसीह यीशु में आपके अंदर है। फिलमोन उसका पहला बाब उसकी 6 आयत। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, यसाया उसका 51 बाब, यसाया उसका 51 बाब, यसाया 51 और पहली से लेके 8 आयत तक कोई भी पढ़े, पहली से लेके 8 आयत तक। ऐ लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावन के जो यान हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो और उस घड़े के सुराख पर जहाँ से तुम खोदे गए हो नजर करो। अपने बाप इब्राहिम पर और सारा पर जिससे तुम
पैदा हुए निगाह करो कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावंद सिहोन को तसल्ली देगा और उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानिंद और उसका सहरा खुदावंद के बाग की मानिंद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें हो। मेरी तरफ मतवज्जो हो ए मेरे लोगों, मेरी तरफ कान लगा ए मेरी उम्मत, क्योंकि शरीयत मुझसे सादिर होगी और मैं अपने अदल को लोगों की रोशनी के लिए कायम करूंगा। मेरी सदाकत नज़ीर है, मेरी नजात जाहिर है और मेरे बाजुओं लोगों पर हुक्मरानी करेंगे। जजीरे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे बाजू पर उनका वकल होगा। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानिंद गायब हो जाएंगे और जमीन कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी नजात अब तक रहेगी और मेरी सदाकत माकूफ ना हो। ए सदाकत शनासो मेरी सुनो, ए लोगो जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से ना डरो और उनकी तानाजनी से हरासा ना हो, क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानिंद खाएगा और किरम उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा। लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी नजात खुशदारुश। आमीन आमीन। अब सुनिएगा, इसको मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ूंगी ताकि आपको बार बार राइटियसनेस का वर्ड मैं आपको दिखा सकूं इसमें, ठीक है? क्योंकि हम रास्तबाजी की तरफ देख रहे हैं और ये आज का हमारा आखिरी हवाला होगा, के बाद हम कल देखेंगे खुदावंद के फजल से। यहाँ पर लिखा है, Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that follow after righteousness। आप में से जो खुदावंद यीशु मसीह में चल रहा है और उसकी रास्तबाजी में, उसके लिए कहता है, ye that seek the Lord, look unto the rock whence ye are hewn, and to the hole of the pit whence ye are digged. Look unto Abraham your father and unto Sarah that bare you, for I called him alone। जब खुदा आपको बुलाता है तो आपको अकेला बुलाता है। आपको अपने साथ टीम की जरूरत नहीं है खुदा को फॉलो करने की। सुन रहे हैं? आपको टीम की जरूरत नहीं है खुदा को फॉलो करने के लिए। इसलिए मैं क्राउड पे बिलीव नहीं रखता। खुदा में क्राउड देगा, हम क्राउड में भी काम करें, लेकिन हम उस क्राउड में काम नहीं कर सकते जो क्राउड सिर्फ शोर डालता है। मुर्गियों में और उकाबों में यही फर्क है। मुर्गियां बहुत शोर डालती हैं और सारी जिंदगी जमीन पर ही चुगती रहती है। उकाब पहाड़ों पर रहते हैं और जितना तेज तूफान होता है, जितनी तेज हवा होती है, वो उतना ऊंचा उसके अगेंस्ट उड़ता है। उसकी नजर तेज होती है, वो दूर से अपना शिकार करना जानता है। उसकी ट्रेनिंग भी सख्त होती है। जब एक उकाब का बच्चा होता है, अंडे से निकलता है, तो वो क्या करता है? जब बच्चा स्टेज पे पहुंच जाता है, क्योंकि बच्चे को शुरू से उड़ना नहीं आता होता। देखें, एक परिंदे को भी, गौर कीजिएगा, अपनी जिंदगी में सीखें ये बात, एक परिंदे को भी हमेशा से उड़ना नहीं आता होता। ऑल्दो उसकी नेचर उड़ने के लिए बनाई गई होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको उड़ना सिखाते हैं। उसको उड़ना सिखाते हैं। उकाब के बच्चों को आप जाके यूट्यूब पे देख सकते। इसी तरह आप मसीह यीशु में हैं, आप नए मखलूक हैं, लेकिन उस नए मखलूक में आपने कैसे चलना है आपको नहीं समझ आ रहा। कलाम खुदा बाप आपको सिखा रहा है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं इसको सीखने? देखिए यहाँ पे क्या लिखे, वो क्या करता है? वो अपने घोंसले से अपने बच्चे को उठाता है और उसको ऊंचाई से, बहुत ऊंचे अपने नेस्ट से तो फेंक देता है नीचे। अब जो तो बच्चा अपने आप को बचाने के लिए अपने पर मार लेता है तो वो तो सुकून से जाके नीचे गिरता है, लेकिन जो नहीं मारता वो डाइव करके, ड्रम करके किसी पत्थर शत्तर पे लग के मर जाता है। और देखें, जब वो मर जाता है तो उकाब उसको बचाने भी नहीं जाता, क्योंकि ट्रेनिंग हार्ड है, क्योंकि उसने बहुत ऊंचा उड़ना सीखना होता है। लेकिन घोंसले से नीचे गिराने वाला उसका अपना पेरेंट होता है, क्योंकि उसको उड़ना सिखाना आपकी भी ट्रेनिंग है। हम आपको घरों में बंद रहने को नहीं कह सकते, आपने कभी दुनिया में निकलना नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट दुनिया में निकल रहे हैं, आप क्या वापस दुनिया के हमशक्ल बने? यहाँ आप अपनी अकल नहीं होने जाने के साथ बात निकले और आपने उनको इन्फ्लुएंस कर लिया, बजाय कि आप उनके इन्फ्लुएंस में। आप में से कितने हैं जो कॉलेजेस जा रहे हैं और आज तक कितनी रूहों को आपने जीता है? आप उनके रंग में रहे। आप में से कितने जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ से लोगों को क्राइस्ट प्रीच करने के बजाय आप उनकी गौसला। आप में से कितने जो फैमिली सर्कल्स में बैठे हैं, उनको अपनी तरह बनाने के बजाय आप उनकी तरह बन गए। आप में से कितने जो जॉब करते हैं, उनको अपनी तरह बनाने के बजाय आप उनकी तरह तौर तरीकों में पड़े। अगर आप एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने कभी चेंज को वेलकम किया है। यहाँ पर वो रास्तबाजों की बात, जो अपनी न्यू आइडेंटिटी में चल रहे हैं, कहता है, फॉर द लॉर्ड, फॉर आई कॉल्ड हिम अलोन एंड ब्लेस्ड हिम एंड इंक्रीज्ड हिम। इंक्रीज होने का मतलब ये है कि आप खुदा के साथ चल रहे हैं। आई कॉल्ड हिम, पहला स्टेप, खुदा आपको बुलाएगा, आप खुदा हो दे, आप खुदा को कबूल करें, खुदा आपको ब्लेस्ड कर दे। लेकिन आपको पता है ब्लेसिंग कब मूव करना शुरू कर? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ उसके इशारों पर, उसके इंस्ट्रक्शंस पर चलते रहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अगर अब्राहम बियाबान में जाके देखें, खुदा ने उसको बुलाया बियाबान में, और आगे क्या होगा? रास्तबाजों में कहता है, फॉर द लॉर्ड शैल कम्फर्ट ज़ाइन, ही विल कम्फर्ट ऑल हर वेस्ट प्लेसेस। जो रास्तबाज है, खुदा उसे, वो जिस ग्राउंड पे भी खड़ा है, खुदा उसमें भी चीजें उगा देगा। जिस जगह उसने नहीं भी बोया, वह वहां से भी काटना शुरू कर। जहाँ से उसको नहीं भी उम्मीद थी, वहां से उसको मिलना शुरू कर। खुदा रास्तबाज की वेस्ट प्लेसेस को परफेक्ट प्लेसेस बना। उसके बाद वो कहता है,
एंड ही विल मेक हर विल्डरनेस लाइक इट। कौन? जो राइटियस हैं। हर जब वो यूज कर रहे हैं राइटियसनेस, उसके बाद वो कहते हैं वो आपकी जो वीराने हैं उनको बाग़े अदन जैसा खूबसूरत बना दे। वो ये प्रॉमिस करा। क्या ये इब्तिदा का प्रॉमिस नहीं जो जेनेसिस चैप्टर 1 में किया गया था? फिर खौफ कैसा? डू यू थिंक खुदा की बात मानकर आप कभी मिसलेड हो सके, मिसलीड हो सकते? हाउ कम यू कैन इमेजिन कि खुदा अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो गलत होंगी। खुदा कहता है, अगर जैसे कि मैं बीज बोने पे अक्सर प्रीच करती हूँ, अगर खुदा आपको कह रहा है कि बीज दो, सीड सो करो जहाँ से आप सीख रहे हो, तो वो कहता है मैं आसमान के दरीचों को खोल दूंगा तेरे लिए, टिड्डी को हुक्म दूंगा कि तू तेरे स्टोरेज बेसिस पे हमला ना करे। जब वो ये कह रहे तो वो करेगा। आप ट्रस्ट नहीं करे क्योंकि आप बिलीव नहीं करते कि कलाम काम करेगा। अगर वो आपको कह रहे कि जिसके पास बीवी नहीं वो उसकी तलाश ना करे, जिसका शौहर नहीं उसकी तलाश ना करे, लेकिन आप अभी भी इस तलाश में हैं, आप वर्ड को फॉलो नहीं करें। अगर वो कहता है कि मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा और आप उसको सीख करने के बजाय आप अभी भी ऐसे टेक्निक्स और आइडियाज के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। कहता है तू शरीर की, तू बदकार की सरफराजी से बेजार ना हो, वो जल्द काट डाले जाए। खुदा जिसने 10 साल मेहनत की, मैं अपनी जिंदगी की गवाही देना चाहती हूँ आप सबको। जब मैंने खुदा यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया मुझे भी ऐसा लगा बहुत लोग आगे तरक्की कर रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे थे। उस वक्त हमारे घर वाले भी हमें कहते थे कि तुम लोग हमें बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, सारा टाइम बाइबल 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 बाइबल, क्या लोग देखो कहाँ से कहाँ पहुंचे। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे खुदा ने मुझे 1 साल में उन लोगों की 11 सालों की मेहनत न सिर्फ बराबर खड़ा किया बल्कि उनसे आगे खड़ा कर दिया। उन्होंने 11 साल मेहनत की, मुशक्कत की और मैंने 11 साल खुदा को फॉलो। इसलिए ना मैं बूढ़ी हुई, ना मैं लाचार हुई, ना मैं एग्जॉस्ट हुई, ना मैं फ्रस्ट्रेट हुई, और आज मैं उन तमाम लोगों की मेहनतों से जो जाकर मेहनत कर रहे हैं वो मैं सोकर हासिल कर रहे हैं। ये डिफरेंस। और देखें क्या लिखे, कहता है for the Lord shall comfort Zion, he will comfort all her waste places, he will make her wilderness like Eden and her desert like the garden of the Lord, garden of the Lord। फिर कहता है joy and gladness shall be found therein। जब आप खुदा की इंस्ट्रक्शंस में चल रहे हैं, खौफ को अलाउ नहीं कर रहे, तो आपको जिस जगह खुदा प्लेस करेगा वहाँ पर जॉय भी होगी, खुशी भी होगी, इत्मीनान भी होगा और शादमानी भी होगी। ऐसा मत समझें कि खुदा एक ऐसी जगह आपको लेके जा रहा है जहाँ आपका दिल नहीं चाह रहा और खुदा जबरदस्ती कर रहा है। तभी तो खुदा आपको जबरदस्ती नहीं करता। अगर खुदा जबरदस्ती आपकी जिंदगी तब्दील नहीं कर रहा तो KCPH में मैं भी हेडेक नहीं लूंगी किसी को जबरदस्ती कलाम सिखाने की, सुनाने की और तब्दील कर, क्योंकि वो कहता है बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, एक्ट जस्ट लाइक गॉड। अगर खुदा किसी को जबरदस्ती चेंज नहीं कर, तो जब मैं खुदा बनने की कोशिश करूंगी ना किसी की जिंदगी में, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। जब मैं किसी को पुश करूंगी ना वो कलाम सीखे, मैं फ्रस्ट्रेट हूँ क्योंकि वो बंदा रिबेल करेगा। आगे बढ़ते कहता है shall be found there in thanksgiving and the voice of melody, hearken unto me my people and give ear unto me O my nation, for a law shall process from me। उसके अंदर में अब खुदा ने अपने हुक्म कहाँ लिखे में? हमारे दिलों में। कहता है I will make my judgment to rest for the light of the people, my righteousness is near। उस वक्त की पुराने समय में बात है, लेकिन अब राइटियसनेस पहुंच चुकी है और हमारे दरमियान मौजूद है। My salvation is gone forth and mine arms shall judge the people, the Israelites shall wait upon me and on mine arm shall they trust। और उसके बाद कहता है सुने, lift up your eyes to heaven and look upon the earth beneath। आपको हेवंस की तरफ देखने की जरूरत है, आसमान आपके अंदर है। For the heavens shall vanish away like smoke and the earth shall wax old like garment and they that dwell with therein shall die in the like manner, but my salvation shall be forever। जो नजात आपको दी गई है वो हमेशा आपके साथ कायम रही। उस नजात से बेनिफिट उठाएं और उस नजात से आपकी जिंदगी में शादमानी आई है, जो ग्लैडनेस आई है, उसको रिसीव करें अपनी न्यू आइडेंटिटी में चल के और फियर को नो कहें। खुदा की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में आपको ऐसा लगेगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। ये खुदा कह रहा है, खुदा कह रहा है मैं तुम्हारी विल्डरनेस को भी गार्डन्स में चेंज कर दूं। खुदा आपके बियाबान, खुदा आपके वीराने, खुदा आपकी तन्हाई को बागों में तब्दील कर दे। ये खुदा का प्रॉमिस है अगर आप न्यू आइडेंटिटी में चलेंगे तो। उसके बाद वो कहते हैं ये हार्कन, कहता है यहाँ पे लिखा है बट माय सल्वेशन शैल बी फॉरएवर एंड माय राइटियसनेस शैल नॉट बी अबॉलिश्ड। जो आपके अंदर रास्तबाजी खुदा यीशु मसीह ये काम कर रही है वो हरगिज कभी खत्म नहीं होने वाली आपके एक्शन से। तभी मैंने बोल दिया आपको KCPH से निकाल सकते हैं, लेकिन आपके रास्तबाजी के स्टेटस को कोई नहीं छेड़े। आप रास्तबाज रहेंगे क्योंकि आपको रास्तबाज खुदा यीशु मसीह, वो आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन क्या होगा? जो उस रास्तबाजी से फुलनेस ऑफ लाइफ है आप उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा ना, हम भी जब ग्रो करते हमें भी ऐसा लगता था कि अगले बंदे की बहुत तरक्की हुई, लेकिन हम कंसिस्टेंट रहे कि खुदा हमारे साथ, और हमने डिसाइड कर लिया हम दो दिल नहीं रहे। हमने डिसाइड कर लिया या तो खुदा के साथ चल या तो दुनिया को फॉलो। जो बीच के लोग हैं वो गिरेंगे। उसके बाद वो कहते हैं हार्कन, उसके बाद है अच्छा, बी नॉट अफ्रेड ऑफ देयर राइवलिंग्स, फॉर द मोथ shall eat them up like a garment and the worm shall eat them like the wool, but my righteousness shall be forever and my salvation from generation to generation।
خدا آپ کو کبھی گرنے نہیں دے اگر آپ اپنی نیو آئیڈینٹی میں چل رہے. اور اس کے میں آپ کو کیا جو رائٹسنس میں چل رہے ہیں، نہ انہوں نے انسان کو خوف کرنا ہے اور نہ ہی انہوں نے خوف زدہ ہونا ہے، نہ فیئر میں آنا ہے، نہ افریڈ ہونا ہے، کیونکہ آپ کے اندر گریٹر پاور کام کر رہی ہے. آمین. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. آپ میں سے جتنوں نے مجھے بھی سیڈ بھیجا ہے، میں نے ان کے لیے برکت کو ڈکلیئر کر دیا. خدا آپ کو بڑھائے گا، خدا آپ کو ملٹی پلائی کرے گا. اور میں نے ایک برکت کا ایک اسپیشل حصہ اپنی پرسنل پریئر میں آپ لوگوں کے لیے ڈکلیئر کر دیا. آپ کو جب آپ کے پاس ٹیسٹیمنی ہو، جیسے آپ کو ٹیسٹیمنی ریسیو ہو، آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے. تو اپنا خیال رکھیے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. خدا حافظ.